Assalamualaikum dear student. I am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Okay students, today we are going to learn Standard 4 subject English from your English textbook My English Book 4, and the topic is an action rhyme, page number 77, and I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Then let us start with the topic today, an action rhyme. Here it is, Unit 6, an action rhyme. Listen, sing and enact. Listen, it means सुनो. Sing, मेरे साथ गाओ. Enact, action के साथ गाओ. Now let's start. Like a leaf or a feather. Now student, please listen it very carefully. You have to listen it and learn the spelling and pronunciation of each and every word. Like a leaf or a feather, like a leaf or a feather in the windy, windy weather. Like a leaf or a feather in the windy, windy weather. Now let's learn some spellings and look at the pictures of some words. Yes. Like a leaf or a feather. Now it is the picture of leaf, yani patta. Now this is the picture of feather. It means parinde ka par. And this is the picture of windy weather. It means जब बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती है तो तेज हवाओं का मौसम इंग्लिश में कहलाता है windy weather. Like a leaf or a feather. Like तरह, पत्ते और पंख की तरह इन द विंडी विंडी वेदर. तेज हवाएं जब चलती है तो पत्ते और फेदर्स पर पत्ते लीफ और फेदर्स जो बहुत हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, वो हवा में जिस तरह तेज हवा में उड़ते हैं बिल्कुल उसी तरह. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Yes, we will all twirl around. We will all twirl around. Now, listen it carefully. The spelling of T-W-I-R-L. Twirl. We will all twirl around and all sink down together. And all sink down together. We will all twirl around and all sink down together. जैसे पत्ते और परिंदों के पंख तेज हवाओं में हल्के होके उड़ते हैं उसी तरह we will all twirl around. हम भी क्या करते हैं? घूमते हैं. twirl around यानी घूमना, है ना. Look at here. यहाँ पर पत्ते कैसे तेज हवा में उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं. Feathers are also twirling. ये भी घूम रहे हैं तेज हवाओं में. Like this only, we will all twirl around. हम भी घूमते हैं. And all sink down together. Sink down का मतलब होता है डूब जाना. पत्ते और पंख कैसे हवाओं में तेज हवाओं में घूमते हैं और उसके बाद नीचे बैठ जाते हैं. Like this, the children, जब बच्चे गेम खेलते हैं रिंगा रिंगा रोजेस, तो उसमें जब लास्ट में वो होता है ऑल फेल डाउन, तो वो क्या होते हैं? इस तरह से नीचे बैठ जाते हैं. ट्वेलिंग यानी कि रिंगा रिंगा रोजेस में वो गोल गोल घूमते हैं, ट्वेल करते हैं. एंड देयर आफ्टर जब लास्ट स्टेंजा आता है ऑल फेल डाउन, तो वो इस तरीके से गिर जाते हैं. तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है रिंगा रोजेस जो रोजेस की जैसे गेम्स को, कि जिस तरह पत्ते और पंख हवा में हल्के होते हैं, जब तेज हवा चलती है तो दे ऑल उसके साथ ट्वेल करते हैं, घूमते हैं,
और जब हवा के साथ में नीचे बैठ जाते हैं लाइक दिस ओनली व्हेन वी प्ले द गेम रिंगा रिंगा रोजेस, तो हम भी ट्विर्लिंग करते हैं, गोल गोल घूमते हैं एंड नीचे बैठ जाते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Yes, like a bird or a flower. Like a bird or a flower. Getting soaked in a shower. Like a bird or a flower. Getting soaked in a shower. Bird it means कली. जो फूल की कली होती है that is called bird. Flower यानी के खिला हुआ फूल. Like a bird or a flower getting soaked in a shower. Soaked का मतलब होता है भीग जाना. Shower का मतलब होता है पानी की बौछार. जिस तरह कलियां और फूल पानी की बौछार में भीग जाते हैं ना, या तो जब हमारा बारिश होती है जब वो भीग जाते हैं, या तो हम जब प्लांट्स को वाटर देते हैं, पानी देते हैं, तब वो सोक्ड हो जाते हैं. तो सोक्ड इन वाटर यानी कि पानी में भीग जाना. या तो रेनी सीजन्स में पौधे पानी में भीग जाते हैं, या तो हम उन्हें रोजाना वाटर देते हैं प्लांट्स को, तब वो पानी में भीग जाते हैं. तो जिस तरह फूल और कलियां पानी में बौछारों में भीग जाती है, उसी तरह like a bird or a flower getting soaked in a shower. उसी तरह. Now come to the next stanza. Yes. We will all sway about. We will all sway about and all dance together. We will all sway about and all dance together. Now what do you mean by sway about? Sway about का मतलब होता है झूमना. झूमना, जो हम झूमते हैं ना बच्चे खुश होकर, या हवाओं से जब ट्रीज झूमते हैं, देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है. तो स्वे अबाउट इट मीन्स झूमना. तो हम भी क्या करते हैं, झूमते हैं. एंड ऑल डांस टुगेदर. एंड वी ऑल डांस टुगेदर. वी विल ऑल स्वे अबाउट एंड ऑल डांस टुगेदर. आई होप स्टूडेंट आपको मीनिंग्स पोयम की बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. नाउ लेट्स रीड वंस अगेन द फुल पोयम विथ अ राइम. Okay students, now read the poem with a rhyme. Read with me. Like a leaf or a feather, like a leaf or a feather in the windy, windy weather. Like a leaf or a feather in the windy, windy weather. We will all twirl around. We will all twirl around and all sing down together, and all sing down together. Like a bird or a flower, like a bird or a flower getting soaked in a shower, getting soaked in a shower. We will all sway about, we will all sway about and all dance together, and all dance together. Read once again. Now read with me student. Okay. Like a leaf or a feather in the windy, windy weather. Like a leaf or a feather in the windy, windy
We will all twirl around and all sing down together. We will all twirl around and all sing down together. Like a bird or a flower getting soaked in a shower. Like a bird or a flower getting soaked in a shower. We will all sway about and all dance together. We will all sway about and all dance together. Like a leaf or a feather in the windy, windy weather. We will all twirl around and all sing down together. Like a bird or a flower getting soaked in a shower. We will all sway about and all dance together and all dance together. I hope students you like the poem. Now in this poem there are some rhyming words. Now let's see the rhyming words. Yes, feather, weather, together. Now three of these are rhyming words. Feather, weather, together. And what do you mean by rhyming words? Same sound words. ऐसे words जिनकी sound बिल्कुल सुनने में pronunciation sound same हो. That is called rhyming words. Then feather, weather, together are rhyming words. और देखते हैं. Yes, flower, shower. These also are rhyming words. Flower, shower. Now come to the next slide. Yes, here the students some more rhyming words I brought for you from the poem. ये poems में दिया हुआ है. As I हमने अभी जैसे पढ़ा weather, feather, together. These all are rhyming words. Now come to the next. Yes, around, sound, found. These all are also rhyming words. Rhyming words ऐसे words जो आवाज जिनकी बिल्कुल same हो, same sound words. Sink, pink, link. और भी बहुत सारे words आप बना सकते हो, okay? All, mall, ball, like call, tall, है ना? Now read it again. Read it once again. Weather, feather, together. Around, sound, found. Sink, pink, link. All, mall, ball. These are the rhyming words. You have to note down these rhyming words in your notebook. Come to the next slide. Yes, here is some exercise in your textbook. Write examples of each of the following. आपको क्या करना है? Examples लिखना है. First example आपको किसके लिखना है? Sentences that end with question mark. आपको ऐसे sentences लिखने हैं जिसके आखिर में question mark आता हो. यानी कि आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस लिखने हैं. तो बताइए सेंटेंसेस. टेल मी द सेंटेंसेस विद एंड विद द क्वेश्चन मार्क. यस, हम बहुत इजी सेंटेंस लेते हैं जो आपको बनाना भी इजी हो, जो आप सुन चुके हो. व्हाट इज योर नेम? हाउ आर यू? वेयर डू यू लिव? है ना? ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिनके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये सेंटेंसेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं. सेंटेंसेस दैट एंड विद क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन वाले सारे
सेंटेंसेस इसमें आ रहे। वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये इस सेंटेंस में आएंगे। नाउ लेट्स सी द अनदर वन। यस, sentences that end with full stop. Now this is the mark of full stop. ये punctuation mark है. Okay, sentences done with the end with the full stop. ऐसे sentences जिसके आखिर में full stop हो. तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हमें लिखना है जिसके आखिर में फुल स्टॉप आता हो. लाइक मल्हार वेंट होम, सेंटेंस कंप्लीट हो गया और आखिर में फुल स्टॉप लग गया. आई वॉन्ट टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, सेंटेंस भी कंप्लीट है तो आखिर में फुल स्टॉप लग गया. आई एम अ गर्ल, दिस इज अ बॉक्स, है ना. आई एम गोइंग विथ माई मदर, ये जो भी सेंटेंस है जो कंप्लीट हो जाते हैं, हाँ अधूरे नहीं रहते, उनके आखिर में फुल स्टॉप लगता है. कम टू द नेक्स्ट. Yes, sentences that end with exclamation mark. ये exclamation mark है बच्चों, तो ऐसे sentences लिखना है जिसमें exclamation mark आता हो. हम exclamation mark का यूज कब करते हैं? जब हम किसी को कोई स्पेशल बात बोलते हैं या जब हम स्ट्रेंज होकर, सरप्राइज होकर कोई बोलते हैं, ऊ आ वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ऐसा कुछ बोलते हैं, या डर के मारे बोलते हैं ओ नो. ऐसे सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है. चलिए देखते हैं. गो बैक होम, द फिश सेड. फिश सेड, उसने एक खास कहा. गो बैक होम, उसने ऑर्डर दिया. तो ऐसे में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं. ओके. हेल्प हेल्प, चिकन लिकन सेड. अब यहां पर भी उसने एक चिल्लाकर, डर के मारे चिल्लाकर कहा, तो यहां पर भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं. कम टू द नेक्स्ट. यस, सेंटेंसेस दैट एंड विथ कॉमा. नाउ दिस इज द पंक्चुएशन मार्क ऑफ कॉमा. कॉमा कब हम यूज करते हैं? जब कोई सेंटेंस अधूरा हो या दो पार्ट में होकर एक मिलता है, दो पार्ट को मिलकर एक सेंटेंस बनता है, या सेंटेंस में एक से कई चीजें आती है, तब हम कॉमा का यूज करते हैं. चलिए देखते हैं. यस, वी पुल, वी पुश, वी पुट. अब यहाँ पर एक साथ कई काम हुए हैं. पुल यानी खींचा भी गया है, पुश यानी ढकेला भी गया है, पुट यानी रखा भी गया है. तो यहाँ पर हम बार बार एंड का यूज नहीं करेंगे, हम कॉमा का यूज करेंगे, है ना. जैसे आई लाइक एप्पल्स, कॉमा मैंगोज, कॉमा बनानास एंड चीकू. हमने एक साथ कई फ्रूट्स के नाम लिए हैं तो हम हर एक में एंड नहीं लगाएंगे. आई लाइक एप्पल्स, कॉमा बनानास, कॉमा मैंगो एंड चीकूस, है ना. और उसके बाद हम कॉमा का यूज कब करेंगे? वी शैल सी सेड हिज वाइफ. इसने स्पेशल बात कही है. सेंटेंस पूरा कब हुआ? जब ये दोनों सेंटेंस मिल गए. वी शैल सी सेड हिज वाइफ, ये ना, ये सेंटेंस में अगर एक भी नहीं होता तो ये अधूरा कहलाता था. तब हम दो सेंटेंस के बीच में कॉमा लगाते हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो ये जो भी हमने आपको आज बताया, दीज आर पंक्चुएशन मार्क. क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप एंड कॉमा. ये पंक्चुएशन मार्क है और ये इनके सेंटेंसेस हैं. क्वेश्चन मार्क, जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन वी आस्क सम क्वेश्चन टू अदर, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, हाउ व्हाट आर यू डूइंग, लाइक दिस. एक्सक्लेमेशन मार्क, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या तो हम कोई सरप्राइज से बात बोलते हैं, दैट टाइम वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. फुल स्टॉप, व्हेन सेंटेंस इज कंप्लीट, जब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, दैट टाइम वी यूज फुल स्टॉप. सेंटेंसेस एंड विथ कॉमा, जब हम
सेंटेंस में एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और जब दो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते, जब उनको जोड़ा जाता है, जब भी वो कंप्लीट होते हैं, एट दैट टाइम इन बिटवीन ऑफ टू सेंटेंसेस वी यूज कॉमा. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप एंड कॉमा और इसका यूज करना इजीली समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन. आई होप आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा. आपका होमवर्क यही है, आप पोयम को बाय हार्ट रीड करोगे, अच्छे से उसको याद करोगे और उसके राइमिंग वर्ड्स और जो एक्सरसाइज है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे. नाउ थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड अल्लाह हाफिज. I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.